सी मैग्नीट्यूड देखा हमने, डायरेक्शन देखा, tan थीटा इज इक्वल टू बी वी बाई बी एच. मैग्नीट्यूड इज डिनोटेड बाय बी ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी वी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच. What is BV? BV is called as the vertical component and BH is called as the horizontal component. B is the total magnetic field. So total magnetic field is given by under root of B square V plus B square H. तो B square V मतलब vertical component and B square H मतलब horizontal component. Square of the vertical component plus square of the horizontal component. It is the magnitude. Clear हो गया? तो ये हो गया definition of the three Earth's magnetic element. So these Earth magnetic elements will be used for finding out the magnitude and direction. Magnitude is given by tan theta is equal to bv by bh. Sorry, direction is given by tan theta is equal to bv by bh, and direction is given by tan theta is equal to bv by bh, and magnitude is bv is equal to b square v plus b square h. अभी कंबाइंड इफेक्ट इसका कैसे है, नेक्स्ट विल सी दिस कंबाइंड इफेक्ट, हाउ दिस मैग्नेटिक डिप, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन एंड अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज शोन. सो दिस आई विल बी शोइंग यू इन द फिगर. इट इज लाइक दिस. Geographic meridian, magnetic meridian, theta, delta, and here BE is the magnetic field, BV is the vertical component, and BH, this is the BH, it is the horizontal component. Okay, so this completes your 5.4. So 5.4 is very important topic. It is just definition which you have to understand, that what are the earth magnetic elements and definitions of all the three earth magnetic element, magnetic declination, magnetic dip और horizontal component of earth's magnetic field. ये तीनों की तीनों definition लिखना है. क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, राइट और एक्सप्लेन earth's magnetic element, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है. So in these 3 marks you have to write all the 3 definitions with the drawing. Okay, so next part we will start here is the magnetization and magnetic intensity. What is the part here? Magnetization 5.5. This is another concept. In this concept we are again going to study about the definition of magnetization. What is magnetization and magnetic intensity. You see, मैग्नेटाइजेशन किसे कहते हैं, ये 5.5 में डेफिनेशन पार्ट है. Magnetization means what and magnetic intensity means what? Magnetization means magnetization is the magnetic movement developed in the material. किसी भी मटेरियल में मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड करते हैं पर यूनिट वॉल्यूम व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड. इसका मतलब क्या है, सपोज आई एम टेकिंग ए सॉफ्ट आयरन, पीस ऑफ ए सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन, ये है. इस सॉफ्ट आयरन को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूँ. ओके, सो जैसे ही सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटिक फील्ड में मैं रखूँगा तो ये सॉफ्ट आयरन क्या होगा, मैग्नेटाइज्ड होना शुरू हो जाएगा. ओके, सो मैग्नेटाइज्ड होना शुरू हो जाएगा. वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सबसे पहले इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल m. ओके, इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल m पर यूनिट वॉल्यूम. और दूसरा पार्ट कौन सा है, वॉल्यूम के ऊपर, कितना पर यूनिट वॉल्यूम होगा. तो कितनी देर के बाद ये जो सॉफ्ट आयरन है
वो पूरी तरह से मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज द मैग्नेटाइजेशन, एंड मैग्नेटाइजेशन इज डिनोटेड बाय कैपिटल M. Capital M is given by magnetic moment divided by volume. Magnetic moment divided by volume. Magnetic moment is denoted by small m and volume is denoted by V. So capital M is equal to small m divided by V. So capital M क्या है? मैग्नेटाइजेशन है. और स्मॉल m क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट है. और V क्या है? वॉल्यूम है. सो मैग्नेटाइजेशन क्या है? इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी. ओके, इसका यूनिट क्या आ जाएगा? एम्पियर पर मीटर. ओके, द यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन. मैग्नेटाइजेशन किसे कहते हैं? ये मैग्नेटाइजेशन है, इट इज़ किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है. सो जो कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है, कितनी देर में कन्वर्ट होगा, मीन्स मैग्नेटाइजेशन क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. ओके, इट इज़ डिनोटेड बाय व्हाट? मैग्नेटिक मूवमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. स्मॉल m डिवाइडेड बाय v. तो v इज़ द वॉल्यूम. जितना बड़ा रहेगा उसका मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा? ज़्यादा टाइम लगेगा उसको मैग्नेटाइज होने के लिए. जितना छोटा रहेगा मटेरियल उतना जल्दी मैग्नेटाइज्ड होगा. क्लियर हो गया? सो ये क्या हो गया? ये है अपना 5.5 का डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन. मैग्नेटाइजेशन is the magnetic moment developed in the material per unit volume when placed in magnetizing field. Per unit volume में कितना magnetic material is given, it is called as the magnetization M. So magnetization is a vector quantity. SI unit of magnetization is what? Ampere per meter. Or dimension is dimension of this is what? M to the power of 0, L to the power of -1, T to the power of 0, A to the power of 1. ये डायमेंशन है किसका? मैग्नेटाइजेशन कैपिटल M का. सो मैग्नेटाइजेशन कैपिटल M इज इक्वल टू M to the power of 0, L to the power of -1, T to the power of 0, A to the power of 1. तो ये है आपका मैग्नेटाइजेशन कैपिटल M. अब मैग्नेटाइजेशन कैपिटल M के बाद क्लियर हो गया. और ये मैग्नेटाइजेशन में व्हाट विल सी? वी विल सी दैट इट टोटल डिपेंड्स अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, मैग्नेटाइजेशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट इज़ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विच मैग्नेटाइज द मैग्नेटिक मटेरियल. और जो मैग्नेटिज्म उस मटेरियल में जो डेवलप होगा, ओके, किस मटेरियल में? सॉफ्ट आयरन में, उसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म. अभी दो चीज़ें हैं. फर्स्ट इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म. व्हाट इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म? द मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस्ड in a soft iron when it is subjected to a magnetic field. और जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मैग्नेटाइजिंग फील्ड के ऊपर. हाउ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज स्ट्रांग, कितना मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रांग है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म कितना होगा. सो दिस इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म डिपेंड्स अपॉन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड. And what this indicates? This indicates that it is the magnetism acquired by the material placed in magnetizing field. So ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैग्नेटिक इंडक्शन जो है. ओके, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक इंडक्शन B, कैपिटल B. ओके, सो ये सेकेंड वीडियो में हमने मैग्नेटाइजेशन क्या है और
मैग्नेटिक फील्ड क्या है ये देखा,